स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आप देख रहे हैं संसद टीवी। आज की खबर लेकर हाजिर हूं मैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों का ये बुलेटिन, साथ ही जानेंगे कि अर्थ जगत में और खेल जगत में क्या हो रहा है, देंगे तफसील से जानकारी। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। संसद का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। राज्यसभा में 102% से अधिक कामकाज। लोकसभा की उत्पादकता रही 97%। दोनों सदनों से 9 विधेयकों को मिली मंजूरी। स्वास्थ्य मंत्री की राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक। कोविड से निपटने के तौर तरीकों पर चर्चा। सरकार ने भारत बायोटेक के इंट्रानेजल कोविड टीके को दी मंजूरी। सिक्किम में दर्दनाक सड़क हादसा, खाई में गिरा सेना का ट्रक, 16 जवान शहीद। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने हादसे पर जताया शोक। सैम करन बने आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी। पंजाब किंग्स ने 18.50 करोड़ रुपए में खरीदा। मीरपुर टेस्ट में 314 रन पर सिमटी भारतीय पारी। और जम्मू कश्मीर में चिल्लई कलां का कहर, भीषण शीतलहर की चपेट में समूचा उत्तर भारत। अमेरिका में भी ठंड और बर्फबारी का सितम। 2000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल। राज्यसभा की शीतकालीन सत्र की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई और इस दौरान सदन में 102% से अधिक कामकाज हुआ। सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने से पहले सभापति जगदीप धनखड़ ने बताया कि इस दौरान 63 घंटे 20 मिनट का कामकाज तय था, जबकि 64 घंटे 50 मिनट कामकाज हुआ। उन्होंने कहा कि इस दौरान सदन में कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा कर पारित किया गया और कई जरूरी मामलों पर सदन में चर्चा हुई। राज्यसभा ने इस दौरान 9 विधेयक वापस लौटाए। सदन में 31 निजी सदस्य विधेयक भी पेश किए गए। सभापति ने यह भी बताया कि बाधाओं के कारण सदन का 1 घंटे 46 मिनट का समय बर्बाद हुआ। Honorable members, statistical evaluation sounds encouraging. 13 sittings, functional time 64 hours and 50 minutes against the total scheduled time of 63 hours and 26 minutes. Productivity 102%. (82) starred questions answered. Response to 1920 unstarred questions tabled. 9 bills passed returned after 20-hour discussion with 160 members' participation. The House traversed the Wildlife Protection Amendment Bill 2022, the Energy Conservation Amendment Bill 2022, 3 bills relating to the Constitution, Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders Amendment, the New Delhi International Arbitration Center Amendment Bill, the Maritime Anti-Piracy Amendments Bill, 31 private members' bills introduction was effected. 0 hour, there were 106 submissions, 205 special mentions. 36 reports were presented before the House by 8 department-related parliamentary standing committees. 3 hours short duration discussion on global warming and remedial steps, in which 17 honorable members participated. The Ministry of External Affairs made a statement on the latest developments in India's foreign policy. Ministry of Defense made a statement on Yangtze incident in Tawang sector in Arunachal Pradesh. Minister of Health and Family Welfare made a statement on COVID pandemic
and the steps taken by Government of India in emerging COVID scenario across the globe. सभापति ने सत्र के दौरान कार्यवाही बाधित होने पर भी चिंता जताई। इस सत्र में सभापति जगदीप धनखड़ के दौरान बतौर सभापति पहली बार सदन की कार्यवाही का उन्होंने संचालन किया। Honorable members, disruption resulting in loss of precious time of 1 hour 46 minutes and exhibition of unacceptable conduct plagued the proceedings in some measure. Disruption as expression mechanism is antithetical to grace, decorum, and sublimity of this solemn platform. The fallout is invariably negative as it generates disillusionment, disappointment, helplessness, and hopelessness in the people. I urge all of you to deeply reflect and seek reality check of the people on our performance. Honorable members, this platform calls for high degree of accountability for its use. Minimum expectation is that expression has to be with responsibility and authenticity. This is not a place for free fall of information not authenticated. This wholesome principle was in breach on some occasions, and the concerned honorable members have been called upon by me to take steps which are yet to be taken. Honorable members, I had urged the leader of the opposition to see me in my chamber, and I would urge him further to be indulgent when I seek such an audience to get his valuable guidance. He stands adjourned sine die. राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी की न्यायपालिका के संदर्भ में की गई टिप्पणियों पर अपनी प्रतिक्रिया को उचित बताया। उन्होंने कहा कि अगर वे इस पर प्रतिक्रिया नहीं देते तो वो अपनी शपथ के साथ अन्याय करते और अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वाह करने में विफल रहते। My attention has been drawn to a statement imparted by the Honorable Chairperson of the UP on 21st December 2022 mentioning, I quote, and you'll appreciate, I could not have personally compromised my dignity more than I did in my subdued response. And what was said was, quote, a troubling new development is the calculated attempt underway to delegitimize the judiciary. That's her perception, I have nothing to say. That is in her domain, duly entitled. In public discourse, you may reflect on it. That is an issue that doesn't concern me. Ministers and even a high constitutional authority have been unlisted, mark the word, unlisted, to making speeches attacking the judiciary on various grounds, unquote. I indicate to you, I will preserve to an extreme decorous degree what I say from this chair. This office cannot be allowed to be dragged on partisan stance. I cannot be unlisted. I assure the leader of the opposition, I cannot be unlisted. Please take your seat, Mr. Tarka. I cannot be unlisted either by them or by you to delegitimize judiciary. I suffered the allegation that I was part of a system to delegitimize judiciary, which means sounding a death knell of democracy. I was expecting the honorable members to appreciate my subdued response. और इधर लोकसभा की शीतकालीन सत्र की बैठक तय समय से पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इस सत्र की कार्य उत्पादकता लगभग 97% रही। 13 बैठकों में 66 घंटे 42 मिनट कामकाज हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि इस सत्र के दौरान 13 बैठकें हुई, जिनमें 66 घंटे 42 मिनट कामकाज हुआ। इस सत्र की कार्य उत्पादकता लगभग 97% रही। उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान महत्वपूर्ण वित्तीय और विधायी कामकाज पूरे किए गए। सत्र के दौरान 9 सरकारी विधेयक पेश किए गए
और 7 विधेयक को सदन ने पारित किया। इसके अलावा सदस्यों ने शून्यकाल के दौरान लोक महत्व के 374 मुद्दे उठाए। साथ ही नियम 377 के तहत सदस्यों ने 298 मुद्दे उठाए। सत्र में स्थायी समितियों के 36 प्रतिवेदन रखे गए और मंत्रियों ने महत्वपूर्ण विषयों पर 23 वक्तव्य रखे। ये सत्र 7 दिसंबर 2022 को आरंभ हुआ था। इस सत्र के दौरान कुल 13 बैठकें हुई, जो 68 घंटे 42 मिनट तक चली है। सभा के चालू सत्र की कार्य उत्पादकता लगभग 97% रही है। सत्र के आरंभ में सदन के एक नए माननीय सदस्य श्रीमती डिम्पल यादव ने दिनांक 12 दिसंबर 2022 को सदस्यता की शपथ ली। इस सत्र में महत्वपूर्ण वित्तीय और विधायी कार्यों का निपटान किया गया। वर्ष 2022-23 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों का पहला बैच वर्ष 2019-2020 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों डिमांड फॉर एक्सचेंज पर 10 घंटे 53 मिनट तक चर्चा चली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सदन को समय से पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का फैसला सभी राजनीतिक दलों की सहमति से हुआ है। ये जो सत्र भी जो जल्दी समाप्त हुआ है, उसी में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सभी दलों की सहमति थी और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर सभी दलों की सहमति से इसको जल्दी समापन किया है। और आइए सीधा रुख करते हैं, केंद्रीय कैबिनेट की प्रेस वार्ता हो रही है, आपको लेकर चलते हैं। रिवीजन जो 1 रैंक 1 पेंशन की है, उसका सालाना जो अतिरिक्त भार पड़ेगा, वित्तीय भार पड़ेगा, ऑडियो सर, वो 8,450 करोड़ रुपए का होगा। ऑडियो चेक नहीं आ रहा। शुरू से दोबारा बोलना है कि आउटपुट नहीं है सर? अभी आ रहा था, अभी चला गया था। आ रहा था, पहले आ रहा था। चेक नहीं आ रहा। 1 2 3। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे। केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों पर वार्ता का आयोजन हो रहा था। किसी तकनीकी खामी की वजह से हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद स्पीकर ओम बिरला से प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने मुलाकात की है। लोकसभा अध्यक्ष से मिलने वालों में प्रधानमंत्री के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के अलावा कई केंद्रीय मंत्री और सांसद मौजूद रहे। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान दोनों सदनों की 13 बैठकें हुई। 9 विधेयक संसद से पारित किए गए, 9 बिल लोकसभा में पेश किए गए, 7 पारित किए गए, तो वहीं राज्यसभा से 9 विधेयक पारित किए गए। इसमें समुद्री जलदस्युता रोधी विधेयक 2022, वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक, ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम संशोधन विधेयक और विभिन्न राज्यों की कुछ जातियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में डालने के कई विधेयकों को मंजूरी दी गई। लोकसभा में नियम 193 के तहत 2 अल्पकालिक चर्चा कराई गई। वहीं राज्यसभा में नियम 176 के तहत एक अल्पकालिक चर्चा कराई गई। The productivity of the Lok Sabha is 97% and Rajya Sabha is 103%. Thankful to the all sections of the House. ये लगभग
विश्व स्तर पर कोविड के मामलों में वृद्धि को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोविड-19 के प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारी और कोविड-19 टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा की। राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक में उन्होंने राज्यों को अलर्ट पर रहने और कोविड-19 प्रबंधन के लिए पूरी तैयारी रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्यों के सहयोगात्मक भावना से काम करने की जरूरत है, जैसा पहले भी मिलकर महामारी से मुकाबला किया है। उन्होंने कोविड के उपयुक्त व्यवहार का टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड वैक्सीनेशन और पालन कोविड प्रबंधन के लिए रणनीति बनी हुई है। स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों को निगरानी प्रणाली को मजबूत करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि टेस्टिंग बढ़ाएं और अस्पताल के बुनियादी ढांचे की तैयारी सुनिश्चित करें। राज्यों को जीनोम अनुक्रमण को बढ़ाने और ये सुनिश्चित करने की सलाह दी गई कि इसके लिए बड़ी संख्या में नमूने भेजे जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आने वाले त्योहारों और नए साल के जश्न को ध्यान में रखते हुए टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड वैक्सीनेशन और मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया। भारत बायोटेक के इंट्रानेजल कोविड टीके को 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए बूस्टर खुराक के तौर पर इस्तेमाल किए जाने को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंजूरी दी है और इसे टीकाकरण पंजीकरण मंच को कोविन पर भी जारी किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस टीके में किसी तरह की सुई का इस्तेमाल नहीं होगा और इसे नाक से दिया जाएगा। ये निजी केंद्रों पर उपलब्ध होगा। चीन और कुछ अन्य देशों में कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच इस टीके को मंजूरी मिली है। इस BBV-154 टीके का 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए बूस्टर खुराक के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए भारत के औषधि महानियंत्रक ने नवंबर में इसे मंजूरी दी थी। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले कुछ यात्रियों का कल यानी कि शनिवार से रैंडम कोरोना वायरस परीक्षण किया जाएगा। नागर विमानन मंत्रालय ने इस बारे में दिशा निर्देश जारी किए। एडवाइजरी में यह कहा गया है कि हवाई अड्डा परिचालकों को अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की रैंडम जांच के लिए आवश्यक ढांचा तैयार करना होगा। चालक दल के सदस्यों को इसके लिए चुने गए यात्रियों को हवाई अड्डे में स्थित जांच सुविधा तक लाना होगा। चीन और कई अन्य देशों में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी के बीच सरकार ने प्रत्येक उड़ान में कुल यात्रियों के 2% का आगमन के बाद हवाई अड्डे पर रैंडम परीक्षण कराने का फैसला किया। एयरलाइंस को इस संबंध में एडवाइजरी भेजी गई है। और आइए एक बार फिर से रुक करते हैं कैबिनेट की प्रेस ब्रीफिंग पर। अरियर के रूप में इन सभी डिफेंस फोर्सेस पर्सनल को जो रिटायर हुए हैं और फैमिली पेंशनर्स को इसका लाभ मिलने वाला है। अब 30/6/2019 तक सेवानिवृत्त हो चुके पेंशनर्स की पेंशन को इस प्रकार से रिवाइज किया जाएगा कि उन्हें कैलेंडर वर्ष 2018 में समान रैंक तथा समान सेवा अवधि के बाद सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों की औसत पेंशन के बराबर पेंशन मिलेगी और ये रिवीजन 1/7/2019 के प्रभाव से लागू होगा। जो पेंशनर्स इस औसत से अधिक पेंशन प्राप्त कर चुके हैं उनकी पेंशन उसी दर पर मिलती रहेगी। ये फैमिली पेंशनर्स, वॉर विडोज एवं दिव्यांग पेंशनर्स की पेंशन भी इसी प्रकार रिवाइज की जाएगी। अरियर का भुगतान जो है वो 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में किया जाएगा, लेकिन फैमिली पेंशनर्स और स्पेशली एंड लिबरलाइज फैमिली पेंशनर्स तथा गैलेंट्री अवार्ड विजेताओं को अरियर्स एक ही इंस्टॉलमेंट में भुगतान किया जाएगा। जिन डिफेंस पर्सनल ने 1 जुलाई 2014 के बाद अपनी इच्छा से प्री मैच्योर सेवानिवृत्ति ली है उन्हें लाभ नहीं मिलेगा। एक निर्णय तो 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर है जो मैंने आप सबके सामने रखा। दूसरा कोपरा से जुड़ा हुआ है 2023 के सीजन के लिए जिसकी प्राइस पॉलिसी को आज डिसाइड किया गया है। कोपरा यानी कि नारियल की गरी के लिए वर्ष 2023 के लिए एमएसपी निर्धारित कर दिया गया। मंत्रिमंडल ने उसकी मंजूरी दी है। किसानों के आर्थिक हितों के लिए लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के अध्यक्षता में
केंद्र की सरकार ने अहम निर्णय लिए हैं। और अगर आप देखेंगे 2018 के बजट में केंद्र सरकार ने किसानों को लागत मूल्य का कम से कम 1.5 गुना एमएसपी के रूप में देने का जो निर्णय लिया था, जिसकी घोषणा की थी, उसको लगातार निभाने का काम किया है। और ये एमएसपी जो है, ये कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस की संस्तुतियों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। वर्ष 2023 में नारियल का तेल निकालने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली फेयर एवरेज क्वालिटी की मिलिंग कोपरा के लिए 10,860 रुपये प्रति क्विंटल तथा पूजा इत्यादि में उपयोग जाने वाली बॉल कोपरा के लिए 11,750 रुपया प्रति क्विंटल का एमएसपी निर्धारित किया गया है। ये एमएसपी जो है, ये मिलिंग कोपरा की लागत मूल्य से लगभग 52% और बॉल कोपरा के लागत मूल्य से लगभग 64% अधिक है। 2022 की तुलना में भी मिलिंग कोपरा का एमएसपी 270 रुपये प्रति क्विंटल और बाल कोपरा का 750 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है। इसके आधार पर पके हुए यानी कि डी हस्क कोकोनट का एमएसपी विभाग द्वारा तय किया जाएगा। पूर्व की भांति इस वर्ष भी प्रोक्योरमेंट का कार्य नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन द्वारा किया जाएगा। आगे के निर्णय जो आदरणीय पीयूष जी के विभाग से संबंधित है, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो आकर उसकी जानकारी आप सबको दें। आदरणीय पीयूष जी। नमस्ते मित्रों, हम सब ने कोविड काल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संवेदनशील व्यक्तित्व का परिचय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 28 महीने तक, जब तक थोड़ी आर्थिक स्थितियां पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं हुई, पूरी तरीके से रेगुलर स्थिति नहीं बनी, तब तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 28 महीने तक 80 करोड़ भारतवासियों को, गरीबों को 5 किलो प्रति महीना अधिक अनाज देकर एक प्रकार से इस पूरे समय में कोई भी व्यक्ति को भूखा ना सोना पड़े, कोई व्यक्ति को अनाज की कमी ना महसूस हो, इसको सुनिश्चित किया। अब एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र कैबिनेट ने किया है। हम सब जानते हैं कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के अनुसार जो अनाज लोगों को देती है, उसके लिए चावल पर 3 रुपए, गेहूं पर 2 रुपए और मोटे अनाज पर 1 रुपए हमारे गरीब भाई बहनों को भी भुगतान करना पड़ता है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक फैसला ये लिया है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो गरीबों को अन्न सुरक्षा दी जाती है, खाद्य सुरक्षा दी जाती है, ये अब मुफ्त में, पूरी तरीके से मुफ्त में लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। देश भर में लगभग 81.35 करोड़ लोग जो खाद्य सुरक्षा के नियम के अनुसार अभी तक पैसे देके सब्सिडाइज फूड ग्रेन लेते थे, अब ये दोनों स्कीम्स को एक प्रकार से जोड़ दिया गया है। खाद्य सुरक्षा में ही मुफ्त में जो अन्नदाता योजना के तहत 35 किलो जिन परिवारों को मिलता है, उनको 35 किलो मुफ्त में मिलेगा। बाकी लोगों को जो 5 किलो अनाज पहले सब्सिडाइज दरों पर मिलता था 1 साल के लिए, अब उनको मुफ्त में वो अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के ऊपर जो फूड सब्सिडी या अलग अलग प्रकार से जो खर्च आता है,
उसको अब बढ़ाकर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। तो 2 लाख करोड़ रुपए अब केंद्र सरकार पूरा खर्चा अपने ऊपर लेगी खाद्य सुरक्षा नियम के अनुसार, और लोगों को अब कुछ भी पैसा भुगतान नहीं करना पड़ेगा। फूड सिक्योरिटी के तहत जो अनाज उनको मिलता है वो आगे चल के 1 वर्ष की अवधि के लिए दिसंबर 2023 तक पूरी तरीके से मुफ्त लोगों को मिलेगा, और इसका बोझ, इसका जो खर्च है वो केंद्र सरकार पर 100% आएगा। लगभग 2 लाख करोड़ का खर्च आएगा, और हमारे गरीबों से कुछ भी पैसा लिया नहीं जाएगा। पूरा पैसा केंद्र सरकार अपने बजट से सुनिश्चित करेगी। ये एक ऐतिहासिक फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिर एक बार अपने संवेदनशील व्यक्तित्व का परिचय देते हुए लिया है, और आगे चल के फूड सिक्योरिटी एक्ट में कुछ पैसा ना दिए गरीबों को मुफ्त में जो उनकी एंटाइटलमेंट है, जनरल कैटेगरी में 5 किलो प्रति व्यक्ति और अंत्योदय अन्न योजना में 35 किलो प्रति परिवार जो अनाज खाद्य सुरक्षा के तहत दिया जाएगा, वो पूरी तरीके से मुफ्त, जिसका खर्च केंद्र सरकार पूरा अपने बजट से पूरा करेगी, जो लगभग 2 लाख करोड़ रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल तो नहीं होगा किसी का कि है? तो केंद्रीय कैबिनेट की प्रेस वार्ता आप देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, कई अहम फैसले लिए गए। सबसे अहम फैसला जो इसमें लिया गया वो बताया गया कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत अब गरीबों को खाद्य सुरक्षा पूरी तरह से मुफ्त दी जाएगी। जो अब तक सब्सिडी के आधार पर दी जाती थी वो अब पूरी तरह से मुफ्त दी जाएगी। और इसके साथ ही बताया गया 1 रैंक 1 पेंशन से जुड़े जो फैसले हैं उसकी जानकारी दी गई, और साथ ही कोपरा को लेकर जो निर्णय लिया गया है उसकी भी जानकारी दी गई। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते आपको दिखाते हैं क्रिसमस के मौके पर स्कूबा डाइविंग कर मछलियों को भोजन दिया जा रहा है। देखिए ये शानदार तस्वीरें। दीजिए इजाजत, इन सर्दियों में अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।